हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और नंपाई सीरीज़ की ये अपनी 4th वीडियो है। और लास्ट वीडियो में अपने ब्रॉडकास्टिंग और ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आई होप सो ये वीडियो आपने देख लिया होगा। ओके, तो आज के वीडियो में हम नंपाई के अंडर एक मॉड्यूल आता है जो कि है रैंडम मॉड्यूल, उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मॉड्यूल अंडर नंपाई। क्यों? क्योंकि जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे और मशीन लर्निंग में रैंडमनेस मेजरली हर जगह यूज़ होती है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डेटा की बात करूँ, मेरे पास डेटा दे रखा है और मेरे को अपने मॉडल को उस डेटा पर ट्रेन करना है। कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे क्या होता है, वी विल डिस्कस इट इन अपकमिंग वीडियो, फ्यूचर वीडियो। पर अगर मेरे को मॉडल को ट्रेन करना है, तो मैं वहाँ से ऐसा नहीं होगा कि 100 रोज़ दे रखे हैं, तो उसमें से मैंने लेट्स से 70 ऊपर के 70 रो पिक कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके? माइट बी वो डेटा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट होगा, सॉर्टेड डेटा होगा, सो आई कैन नॉट पिक दिस। तो मेरे को रोज़ को रैंडमली पिक करना होता है, ठीक है? सो दिस इज़ द वन ऑफ द यूज़ केस। ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क में भी मैं जब वेट असाइन करता हूँ अपने न्यूरॉन्स पर, तो वो भी इनिशियली रैंडमली ही असाइन करता हूँ, ठीक है? मतलब करते हैं, ओके? सो दिस इज़ व्हाट डू। सो दिस इज़ व्हाई द रैंडम मॉड्यूल इज़ इम्पोर्टेंट, और जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे होंगे। इम्पोर्ट numpy एज़ एनपी, ओके? Perfect. So let me run this. There we go. ओके, सो विदाउट एनी डिले मैं डायरेक्ट कोड करने स्टार्ट करता हूँ, मैं ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाता हूँ, ठीक है? अगर इन केस इफ यू वांट टू जनरेट एनी रैंडम नंबर, हाउ विल यू डू दैट? np डॉट रैंडम, ओके? सो एन सॉरी, दिस इज द मार्कडाउन फाइल। सो np डॉट रैंडम डॉट रैंड, okay? This is the function which will return you a float value. Okay, so if I run this, will it give me something? Yes, it is giving you something. Now just see this. Okay, so this is actually giving you the single value. Now if you refresh each time, it will give you different random value. Can you see this? It is the uniform data which is in range of 0 to 1. Okay, this is the value it is giving you. In case if you want the multiple value, okay, so what you can do, random, and there would be the parameters which you can pass. For example, if you're passing over here 5, okay? So if I run this, it is giving you the random value. This array is the random array. You can store this data, and obviously this array is the numpy array, okay? Now you can print this ARR, okay? You can store that single value as well. So you are having this array, okay? Now in case you are looking for the matrix, okay, so np dot random dot rand, which is the rand function, okay? Now what you can do, you can pass 3 comma 3, something like that. Now if I run this, it will give you 2D matrix, okay? This is the matrix it will give you, और जो कि क्या है, मेरा एक यूनिफॉर्म डेटा है, okay? So it is giving you matrix and you can store it somewhere and you can print it, okay? So ये जो डेटा मेरे को मिल रहा है, this is my uniform data, and this is the actually uniform distribution it follows, okay? So it gives you uniform data in range of 0 to 1, okay? In range of 0 to 1. So yeah, this is what it is. I hope it would be clear to you. Next function which I want to discuss, I am just discussing all the majorly used functions, so you can actually go for the functions, and either a numpy random function, you can go for this. You will get the proper documentation for this as well, okay? So here this is the function is given, okay? np.random.rand. Although we are having too many functions, for example, this random int function I'm supposed to discuss right now. So what is this random int function? If I use the np.random.random int, okay? So what I can do, initially, if I pass over here 5, just see this, it is giving you 0, okay, 1, 0, 1, 2, 3, 4, okay, something like that. So this is the lowest value which I'm looking for, okay? So you can pass the any range, okay? So will it give the random integer? No, it will not. So it requires one positional argument, and you can go for the documentation as well. Okay, there we go.
This is the old version, switch to stable version. Let's see. Okay, this is the stable. Okay, the low is something the lowest sign of integers to be drawn and high. Okay, so it is the range. It is the range you can pass. कि आपने बोला कि मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए और वो मेरे को 1 से लेके 100 के रेंज में से कोई भी एक इंटीजर वैल्यू पिक करके दे दो। इफ यू रन इट जस्ट दिस। Okay, now if you are looking for this is the lowest value and this is the highest value. Okay, so it is giving you any random integer between this range. Now if you are looking for कि मेरे को array generate करनी है और उस array में जैसे you want to generate the age, ठीक है, age का एक आप array generate करना चाहते हो, you want कि जैसे आपको डमी डेटा सेट जनरेट करना है, उसमें एक एज का कॉलम आपको जनरेट करना है। आई विल शो यू कि डमी डेटा सेट कैसे जनरेट करेंगे यूजिंग दिस। ओके, तो आपने बोला कि एज जो है 20 से स्टार्ट होगी और 60 तक जाएगी, ठीक है? सो इट विल जस्ट गिव यू द डमी डेटा। अगर मैं प्रिंट करता हूँ एज, यू विल सी कि सॉरी, यहाँ पे आपको 60 तक जाएगा और आपने बोला कि मेरे को कितने रिकॉर्ड्स चाहिए? मैंने बोला कि लेट्स से मेरे को 30 रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है? एज के। सो यू विल हैव द 30 रिकॉर्ड्स ऑफ एज, ठीक है? जहाँ पे आपके पास रैंडमली पिक्ड क्या है? रैंडमली पिक्ड इंटीजर वैल्यू है। दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक। ओके? और इन केस आपको कोई मैट्रिक्स जनरेट करना है, यू कैन जनरेट द मैट्रिक्स एज़ वेल कि मैट्रिक्स और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? np.random इंट, ठीक है? आपने बोला कि लोएस्ट मैट्रिक्स का जो कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो लोएस्ट जा सकता है वो 20 जा सकता है, हाईएस्ट लेट्स से 45 जा सकता है और उसका साइज़ क्या रहेगा? अब एक्चुअली जो मैट्रिक्स का जो साइज़ होता है वो तो डायमेंशन में होता है, तो आप कुछ इस तरह से तो पास नहीं कर सकते 3 बिकॉज़ ये आपके 4 आर्गुमेंट हो जाएँगे, तो आपको कैसे पास करना है 3 समथिंग लाइक दैट। इफ आई रन दिस, ओके, सो ओके आई एम गेटिंग द मैट। एक्चुअली मैंने इसे प्रिंट नहीं किया है और मैट वेरिएबल मैंने इसे स्टोर कर लिया था। ओके, सॉरी। ओके, सो दिस इज़ मैट। ओके, so this is how it is working and you can print it. Okay, I hope it will be making sense to you ki how this thing is working, how this random integer is going to work. Okay, now there is another function which is uniform, which I'm supposed to discuss. This one, numpy random dot uniform. ओके, सो दिस इज द फंक्शन जो कि आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देता है। अभी हमने जो RAND फंक्शन देखा था, इट इज ऑल्सो गिविंग द यूनिफॉर्म वैल्यू, बट द थिंग इज कि जो यूनिफॉर्म वैल्यू मिल रहा है उसका रेंज जो है 0 to 1 है और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? यू कैन असाइन द रेंज। ओके, सैंपल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है? तो दैट्स अ थिंग। यहाँ पर इट इंक्लूड्स लो और एक्सक्लूड करता है हाई को, मतलब यहाँ पर भी यही होता है कि एक्चुअली 1 यू विल नॉट गेट 1। ओके, ये 1 को एक्सक्लूड कर देता है, 0 को इंक्लूड करता है। रैंडमली आपको 0 मिल जाएगा बट यू विल नॉट गेट द 1। ओके, सो यूनिफॉर्म में यही होता है यहाँ पे, ठीक है? सो दिस इज़ माय यूनिफॉर्म। सो या uni unidata, let's say this is a variable name which I want to create, and it is actually something control A, control X. This is the markdown file, and what I want to do, I want np dot random. Okay, np dot random dot uniform. Okay, so I need to pass the lowest value. Okay, so for example, the lowest value is 12. Okay, and I'm interested in the highest value, let's say 50. Okay, so it will just, although it will just generate the single value, or just uni data, ठीक है? It will, right now it is generating the single value, but you can pass the size. For example, आपको 10 रिकॉर्ड्स चाहिए, मतलब 10 एलिमेंट्स चाहिए, यू आर गेटिंग द 10 एलिमेंट्स आउट ऑफ। ओके, एंड मे बी आपको एक मैट्रिक्स चाहिए होगा, सो इफ यू वांट द मैट्रिक्स फॉर दिस, यू कैन लुक फॉर द मैट्रिक्स एज वेल। ठीक है, तो मैट्रिक्स का वही सीन है कि आपको क्या पास करना है, पैरेंथेसिस में साइज पास करना है 2,3, मतलब 2,3 का मेरे को एक 2 डायमेंशन मैट्रिक्स चाहिए जहाँ पे 2 रोज होंगे मेरे और 3 कॉलम होंगे हर एक रोज में। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और नो, 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 नो। ओके, वन मोर फंक्शन व्हिच आई वांट टू डिस्कस इज दैट एक्चुअली इट इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी फंक्शन। ओके, व्हाट इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी फंक्शन? ओके, फॉर एग्जांपल, आपने कुछ मॉडल बनाया या किसी भी डेटा पे ट्रेन किया और मे बी किसी भी डेटा पे टेस्ट किया आपने उस मॉडल को, और लेट्स से वो डेटा जो है आपने रैंडमली बनाया था। ओके, अब कोई भी बंदा उस डेटा को टेस्ट करना चाहता है ऑन द सेम डेटा। ओके, फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग दिस वैल्यू, लेट्स से np
रैंडम डॉट रैंडम इंट, ओके, और मैं लोएस्ट पास करता हूँ 45, सॉरी लोएस्ट पास करते हैं 20 और हाईएस्ट पास करते हैं 50, और लेट्स जस्ट कंसीडर, या मैं इसे सैलरी का कॉलम बनाऊँ ना, सैलरी का डेटा, ठीक है, लेट्स से मेरा सैलरी, लोएस्ट सैलरी 20,000 है और हाईएस्ट सैलरी मेरा लेट्स से 50,000 है, ठीक है? और मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं इसके, लेट्स जस्ट कंसीडर मेरे पास यहाँ पे 20 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है? अगर मैं इसे रन करता हूँ, यू विल गेट द सैलरी, ओके, प्रिंट सैलरी का डेटा एंड जस्ट सी दिस, यू विल गेट द सैलरी का डेटा। हुँ? नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ, नाउ इफ यू कुड सी दिस, द वैल्यूज़ आर चेंजिंग, वैल्यूज़ आर चेंजिंग। पर मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है, इन केस अगर मैं इन वैल्यूज़ को टेस्टिंग में यूज़ कर रहा हूँ, ओके? जो कि मैंने एक मॉडल बनाया है, उसका कोई भी मोटिव रहा होगा, और सेम मैं चाहता हूँ कि सेम डेटा कोई दूसरा भी बंदा टेस्टिंग में उसी डेटा का यूज़ करे, उस मॉडल को टेस्ट करे। तो आप क्या करोगे, यू कैन असाइन द वैल्यू व्हिच इज़ रैंडम डॉट np डॉट रैंडम डॉट सीड, ठीक है? और यू विल पास एनी वैल्यू, एनी रैंडम नंबर यू कैन पास, लेट्स से 32। नाउ लेट मी शो यू वन थिंग, अगर मैं इसे रन करता हूँ और इसे बार-बार मैं रन कर रहा हूँ, जस्ट सी दिस, आई एम रनिंग इट अगेन अगेन, अब ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही। दिस इज़ दिस इज़ द वैल्यू जो कि रैंडमली प्रोड्यूस हुए हैं अ सिंगल टाइम, ठीक है? और इसी को इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ और मैं वापस यहाँ पे भी प्रिंट कराता हूँ। नाउ जस्ट सी दिस, यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू, ओके? इफ यू विल नॉट यूज़ इट, अगर आप इसे यूज़ नहीं करोगे, ओके? व्हाट इफ अगर आप यहाँ पे सॉरी, अगर अगर आप यहाँ पे रैंडम डॉट सीड और लेट्स से अगर आप पे 42 पास करते हो, सो यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू, पर एक बार उस आपको रैंडम वैल्यू मिल जाएँगे, उसके बाद यू विल नॉट एबल टू चेंज देम, ठीक है? और आपको डॉक्यूमेंटेशन में यू विल गेट 42, ओके, मेजरली आपको 42 ही देखने को मिलता है। इसका कोई एज़ सच देयर इज़ नथिंग कि हम 42 यूज़ करने के पीछे कोई रीज़न है, कोई बहुत बड़ा रीज़न है, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। इट इज़ जस्ट कि वो डॉक्यूमेंटेशन में 42 जनरली यूज़ होता आया है और लोग यू विल सी कि इट इज़ द वन ऑफ द कन्वेंशनल थिंग, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसका कोई मोटिव नहीं है, ओके? 42 एक्चुअली यूज़ बहुत होता है। यू विल सी कि सभी डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादातर 42 लिखते हैं, हम एमएल में मैं आपको दिखाऊँगा जब मशीन लर्निंग में पढ़ाऊँगा। डॉक्यूमेंटेशन में 42 लिखते हैं, पर इसका एज़ सच कोई यूज़ नहीं है। इट इज़ समथिंग, आप कोई भी रैंडम सीड असाइन कर सकते हो, और जो भी आप रैंडम सीड असाइन करोगे और कोई बंदा उस डेटा को रिप्रोड्यूस करना चाहता है, इट विल गिव द सेम वैल्यू एज़ द सीड, और और उस बंदे को वही वैल्यू मिलेंगे जो जिसका आपने यूज़ किया है फॉर द टेस्टिंग पर्पज़, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट द रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज़। आई होप इट विल बी मेकिंग सेंस टू यू, इसका मतलब क्या है एंड हाउ इट इज वर्किंग, ओके? नाउ नेक्स्ट थिंग which I want to discuss is that okay, I want to discuss about the distribution, and which is the probability distribution which I want to discuss. Probability distribution, ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वी आर हैविंग द व्हिच इज माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और जो अभी अपन ने देख लिया था, ओके, सो दिस इज बाय रैंडम डॉट नॉर्मल, वेयर इट इज रैंडम डॉट नॉर्मल, ओके, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड या, सो दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको एक बेल शेप्ड कर्व देता है, एंड आई विल ड्रॉ शो यू हाउ इट गिव्स यू द बेल शेप्ड कर्व। ऐसे ही मेरा एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ओके, एवरीथिंग इज गिवन, नाउ जस्ट सी दिस, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से बेल शेप्ड कर्व देता है, ओके, आई विल ड्रॉ इट टू यू कि हाउ इट इज गिविंग यू दिस कर्व, ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, is how we'll do that. So np dot random dot normal, okay, now you will pass the loc is nothing but the mean value you are talking about, okay, so what should be the mean, मैं बोलता हूँ कि जो डेटा का लेट्स से मेरा मीन रहना चाहिए, जैसे दिस, यहाँ पे भी इन्होंने क्या पास कर रखा होगा, मीन पास कर रखा हो, डिड दे पास द मीन ओवर हियर? I don't know. Yeah, they would have passed the mean somewhere. Okay, so LOC is given, the scale is given. Okay, scale is nothing but the standard deviation. मतलब कर्व में कितना डेटा का स्प्रेड है. This is what the standard deviation. LOC जहाँ पे इसका क्या है, mean value which is the average value. ठीक है, जहाँ पे लिख भी रखा है this is the mean which is the center of the distribution. Scale, ठीक है, then scale, the standard deviation, spread or the width of the distribution must be non-negative. Okay, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि मेरा मीन वैल्यू रहना चाहिए, लेट्स से वो एवरेज वैल्यू लेट्स जस्ट कंसीडर कि 25 रहना चाहिए,
ओके? और द वैल्यू ज फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो स्केल रहना चाहिए लेट्स से लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रहना चाहिए, ठीक है? तो नाउ इफ आई प्रोड्यूस द वैल्यू एंड आई विल जस्ट गिव द साइज़ क्या रहना चाहिए, आई विल जस्ट से कि इट शुड बी 20, ओके? It should be 20. You are getting the 20 values. Okay. Now for this, what you can do, you can plot this. Okay. You can plot this and how will plot this? I will import matplotlib.py plot एस पी एल टी सो दिस इज़ वन ऑफ द लाइब्रेरी ठीक है और ये जो लाइब्रेरी है इट इज़ यूज फॉर प्लॉटिंग अगर आपको डेटा को विजुलाइज करना हो पाइथन में उसके लिए आप मैट प्लॉट लिब का यूज़ करोगे ठीक है सो टू प्लॉट दिस व्हाट वी विल यूज द पी एल टी डॉट हिस्टोग्राम प्लॉट ओके पी एल टी डॉट हिस्ट सो आई नीड टू पास द एरे विच इज़ नथिंग बट द एन पी डॉट रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरे को पास करना है यहाँ पे ना अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ जस्ट सी दिस okay so it is giving you the curve okay so this is actually is this the well size curve अगर मैं यहाँ पे for example मैं यहाँ पे 100 पास करता हूँ so you will have the 100 data points and आपको कुछ इस तरह से ये डेटा मिल रहा होगा ठीक है तो जब आप k डेंसिटी एस्टिमेटर जब kd का आप जब लाइन ड्रॉ करोगे so it will give you the bell shaped curve for example यहाँ पे कुछ 1000 ले लेता हूँ मैं डेटा पॉइंट्स को ठीक है सी दिस ठीक है सो यू विल गेट द वेल शेप्ड कर्व जिसमें आपका स्केल क्या है 5 का स्केल है फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर लेट्स से यहाँ पे इन्होंने क्या स्केल रखा था दे हैड जस्ट पुट द स्केल ऑफ डिड दे गिवन इट नो plot they had actually created the bins okay number of bins we were having so okay so let's just consider we also want to create the bins over here okay so let's say I want to create the 30 bins over here okay so I can create the 30 bins and this is how the data will look like okay so you can do this to create we can create the actually I can show you the line on it so that you could know कि हाँ इसका मीन क्या है अगर जस्ट सी दिस मीन वैल्यू यहाँ पे 25 आप देख सकते हो सो इट इज जस्ट 25 आई कैन प्लॉट द लाइन विच इज द पी एल टी डॉट ए एक्स बी लाइन या इट इज ए एक्स बी लाइन ओके आई कैन प्लॉट दैट एक्स शुड बी क्या है एक्स शुड बी 25 बिकॉज मैंने असाइन भी कर रखा है 25 और इसका मैं बोलूंगा कि कलर क्या रहना चाहिए इट शुड बी रेड रहना चाहिए Okay. So yeah. So and the label is nothing. The label I do not want to print anything else. So plt dot so ठीक है तो आई कैन जस्ट शो यू कि यहाँ पे जो मीन है दिस इज द जो रेड लाइन दिख रहा है वो आपका मीन को शो कर रहा है ओके सो आई होप यू आर गेटिंग कि ये जो डेटा है वो मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है ऐसे ही जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है विच इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है जो डेटा आपका होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओके तो यहाँ पर आपके पास जो डेटा है उसका मीन जो है 25 है सॉरी मीन जो है 25 है, ठीक है? उसका स्प्रेड जो है 5 है, डेटा का स्प्रेड 5 है एंड यू आर हैविंग 1000 डेटा पॉइंट्स ओवर हियर जिसे आप प्लॉट कर रहे हो। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब ये चार्ट कैसा दिखेगा? ओके लेट मी कॉपी दिस और यूनिफॉर्म के बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है? और फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा पॉइंट्स -10 से लेके +10 के बीच में होने चाहिए। अब मेरे पास 1000 डेटा पॉइंट्स होने चाहिए और 30 बिन्स होने चाहिए, नाउ जस्ट सी दिस। अभी जो यूनिफॉर्म मैं यहाँ पे ऐसे गलत ही प्रिंट कर रहा हूँ, ओके जस्ट सी दिस। अब जो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अब जैसे मैं बोलता हूँ 100 सो इट इज़ नॉट गिविंग यू दैट कर्व। ठीक है? जस्ट सी दिस आपको जो डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बन मिल रहे हैं, ओके? तो -10 से लेके 10 के बीच में आपको 1000 क्या मिल रहे हैं? डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं। इट इज़ नॉट एक्चुअली दिस इट इज़ नॉट बेल शेप्ड कर्व जिसका मीन जो है 25 और ये जो डेटा डेटा पॉइंट्स जो हैं, ठीक है? जो आपने यू जस्ट फिगर्ड इट आउट अगर आप इसका मीन निकालते हो जस्ट सी दिस अगर मैं इसका डॉट मीन करता हूँ, तो मीन इज़ वन ऑफ द फंक्शन अगर मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ, नाउ लेट मी शो यू इसका मीन क्या है 24.88 मतलब अराउंड अराउंड क्या है? अराउंड 25 है, नाउ ज इट इज़ चेंजिंग जस्ट सी दिस ठीक है? तो कहने का मतलब ये है इसका मैंने मीन क्या लिख रखा था 25 अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने क्या लिख रखा था 5 तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास फंक्शन होता है व्हिच इज़ एसटीडी अगर मैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाऊँ तो इज़ 4.81 ठीक है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपन ने क्या पास कर रखा था 5 तो जो अपना डेटा आ रहा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन हमने डिफाइन कर रखा है तो इसी वजह से ये जो कर्व दिख रहा है इट इज़ अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो इट विल बी द वेल शेप्ड कर्व और अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका जो एवरेज होगा इट इज़ नॉट द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा तो आपका यू कैन चेक द स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है इट विल जस्ट चेंज है ना 5 है ओके और इसका जो मीन है वो भी डिफरेंट होगा वो मीन वी हैड नॉट असाइन्ड इट ठीक है वो कुछ अलग-अलग ही हो रहा होगा माइनस में भी दे रखा है ना?
समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब ये जो डेटा है वो यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसे हम दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सो दिस इज़ व्हाट माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप आप इट विल मेकिंग यू सेंस कि ये क्या है, और अगर आप मैथ बैकग्राउंड से अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो फिर आपको तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, perfect. Now move to next. What I want to do that. Okay, so what I can do next, I want to discuss about another function which is अभी तो था, that was the choice function actually. ओके, द सीड फंक्शन व्हिच आई डिस्कस्ड वो यहाँ पे दे रखा है। ऑल्दो बहुत सारे फंक्शन मैं इन सबको फंक्शन को डिस्कस नहीं कर सकता, यू कैन गो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। जो मेजरली यूज्ड फंक्शन है आई जस्ट नोटेड डाउन और वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज द चॉइस फंक्शन। ओके, तो चॉइस फंक्शन क्या है? यू विल गिव वन एरे जो कि आपका 1D एरे होगा और कोई इंटीजर का एरे होगा। इफ एन एनडी एरे, ओके, सो इट इज समथिंग यू विल गिव दैट एरे, और यू विल डिफाइन द साइज क्या रहना चाहिए। ठीक है, and replace whether a sample is with or without replacement. Default is 0, meaning that a value of a can be selected multiple times. ठीक है, so you can select the value multiple times and maybe cannot select it. Or p is something the probability associated with each entry in a. If not given, the sample assumes a uniform distribution overall entries in a. ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये हुआ, so this is the choice function which I want to discuss. This is np dot random dot choice. चॉइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे दे रखा है, ओके, और उस एरे में आपने बोला कि मेरे पास कुछ नेम दे रखे हैं, जैसे ए, बी, सी, ठीक है, डी, ई, एफ, ओके। सो दीज आर द, फॉर एग्जांपल नेम इज गिवन, तो आप क्या कर सकते हो? यू विल से कि आपके पास एक नेम का नेम एक लिस्ट है, सो विल पास द नेम, ठीक है। नाउ द साइज क्या रहना चाहिए? आपने बोला कि मेरे को कोई भी रैंडमली 3 लोगों को पिक करके दो, जैसे दिस। ओके, नाउ इफ आई रन दिस, अगर मैं यहाँ पे एनपी डॉट रैंडम सीड लगा देता हूँ ना, जैसे इधर एनपी डॉट रैंडम डॉट सीड लगा देता हूँ, सो जो वो एक बार में पिक करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल रैंडम सीड का वैल्यू 3 रख दिया ना मैंने, सो अब ये हमेशा यही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसे 2 कर देता हूँ, तो 2 पर जो रैंडम सीड के वैल्यू आएंगे वो हमेशा वही, फिर इसके बाद यू विल नॉट चेंज इट, ठीक है। सो इट इज समथिंग वी आर डिस्कस्ड। ओके, तो नाउ द थिंग इज कि अगर आप देखोगे मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडमली इस एरे में से 3 लोगों को पिक कर रहा हूँ, ठीक है। देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेट द बूलियन वैल्यू, और ये जो बूल है एक्चुअली दिस इज द बूलियन वैल्यू व्हिच आई वांट टू सेट। आई विल जस्ट से कि अगर ये ट्रू कर दूँ, ओके, अगर मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, सॉरी इट इज़ नॉट, इट इज़ समथिंग लाइक आई नीड टू पास समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। ओके, अगर मेरे को ट्रू है, कुछ इस तरह से पास करना है, आई कैन जस्ट पास दिस ट्रू, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस, हियर यू कैन सी कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मेरे पास 6 वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 6, जस्ट सी दिस, यू विल गेट 6 वैल्यू, एंड ऑब्वियसली यू आर गेटिंग द रिपीटेशन एज़ वेल, वैल्यू का रिपीटेशन भी मिल रहा है आपको, है ना? अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ, इफ आई मेक इट फॉल्स anyhow, इफ आई मेक इट फॉल्स, सो व्हाट इट विल गिव मी, जस्ट सी दिस, यू विल गेट ए बी सी डी ई एफ, ओके, यू विल गेट ए बी सी डी ई एफ, ओके, सो यू आर नॉट गेटिंग द रिपीटेड वैल्यू। व्हाट इफ अगर मैं इसे 7 कर देता हूँ, सो जस्ट सी दिस व्हाट विल हैपन, इट विल गिव यू एरर। सो व्हाट पॉइंट्स आई वांट टू मेक, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर अगर आप इस बूलियन वैल्यू को, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। बूलियन वैल्यू को अगर आप ट्रू करते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो एरे पास कर रखा है, उसमें से वो रैंडमली वैल्यू को पिक करके एक एरे क्रिएट करके देगा आपको। ओके? सो आप जिसका लेंथ 6 रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ट्रू। इफ यू डू नॉट वांट टू यूज़ इट, इट इज़ द ऑप्शनल पैरामीटर, सॉरी इट इज़ द ऑप्शनल पैरामीटर, ओके? आप यहाँ से रैंडमली 6 नेम को पिक कर रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, मतलब आपके पास रिपीटेड वैल्यू भी आ रहे हैं, सीसी आ रहा है, ओके, ए भी आ रहा है, ई फिर आ रहा है, डी नहीं आ रहा, ओके। अगर आप इसे फ़ॉल्स कर देते हो, इसका मतलब ये यू आर सेइंग कि मेरे को रिपीटेड वैल्यू नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट यूनिक वैल्यू फ्रॉम द एरे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, टोटल 6 एलिमेंट हैं, तो 6 एलिमेंट हैं, तो 6 के 6 एलिमेंट प्रिंट होंगे, पर उनके पोज़ीशन डिफरेंट-डिफरेंट होंगे और वो रैंडमली ही पिक्ड हैं, ओके। नाउ अगर आप इसे 7 कर देते हो, तो फिर ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 6 एलिमेंट आप 7 रैंडम एलिमेंट नहीं पिक कर सकते जो कि यूनिक हो, क्योंकि एक तो रिपीट करेगा, है ना? दैट इज़ व्हाई इट इज़ गिविंग यू द वैल्यू एरर।
कैन नॉट टेक लार्ज सैंपल देन पॉपुलेशन व्हेन रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स। सो दिस इज एक्चुअली द रिप्लेस, ओके, व्हेन द रिप्लेस इज फॉल्स। आई होप इट विल बी मेकिंग सेंस कि हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, यू कैन पिक द रैंडम वैल्यू और ये सब क्या है, मेरे यूनिक वैल्यू है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। नाउ वी आर हैविंग दिस probability. Okay. So what is the probability? The probability associated with each entry in float if not given in a sample assumed. So is they had used any example of probability over here? Okay. Random choice. The probability is going to be 0.5, 0.1, 0.1 and 0.3. So this is the probability they had assigned. Okay. यहाँ पर भी इन्होंने प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर रखा है। जनरेट अ जन नॉन यूनिफॉर्म रैंडम सैंपल फ्रॉम एनपी डॉट अरेंज 5 ऑफ साइज 3। ठीक है? अब ये होगा क्या? सो इट हैड दे हैड असाइन्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वैल्यू। ओके, डिड आई टेकन एनी एग्जांपल ओवर हियर? हुँ, ओके, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास जो वैल्यू दे रखे हैं अभी के लिए, आई एम हैविंग दीज़ वैल्यू, ओके, एंड अमॉन्ग देम आई वांट टू यूज़ द लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेल, ओके, सो लेट मी रिमूव दिस and I just want to use the probability which is the p value. Okay, I just want to assign the probability. Now just see this what they had did. They are generating uniform random sample from np dot arrange, मतलब जो अब इन्होंने जो 5 पास कर रखा है, they are generating 3 नंबर रैंडमली, दे आर जनरेटिंग 3 नंबर, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। इन्होंने यहाँ पे नेम पास ना करके इट इज़ जस्ट पास दे, इन्होंने एक वैल्यू पास कर रखा है 5 और इस 5 फ्रॉम 0 टू 5 वो क्या कर रहे हैं, 3 रैंडम नंबर को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, आई जस्ट कीप इट ब्लैंक, तो आई जस्ट नीड टू रिमूव फॉर सेक ऑफ नाउ, जस्ट सी दिस। तो वो क्या कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट जनरेटिंग रैंडम नंबर फ्रॉम 0 टू 5। ठीक है, सो इट इज़ वर्किंग लाइक अ अरेंज फंक्शन व्हिच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। Okay. Now the thing is they had assigned the probability. Now how this probability is working? Now if you could see this, they had passed this probability and it will generate non-uniform random sample from NP of size. So they had like, let me just put this probability, then it will make you sense the how it is working. Okay. So 0 to 5, 0, 1, 2, 3, 4 and just 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So this is the probability of occurring value. Okay, this is the probability of occurring value. So what is the probability of occurring 0? What is the probability of occurring 1? Okay, now just see this. Probability of occurring 1 is 0. तो अब आप जब भी आप इसे रन करोगे you will never see कि 1 occur हो रहा है because probability of occurring 1 is 0 and also probability of occurring 4 is 0. Just see this. Probability of occurring 0.6 is too high. Like probability of occurring 3. Probability of occurring 3 is 0.6. मतलब सबसे ज़्यादा हाई तो इसी का है ना? तो जस्ट सी दिस। तो कहने का मतलब सर आपका ये है कि अगर मैं यहाँ पर मेरे पास नेम दे रखे हैं, तो मैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी नेम के अकर होने की? यस, एग्जैक्टली। सो व्हाट यू कैन डू, आप अगर पी में क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी निकलो और नाउ इफ यू विल सी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑब्वियसली टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 0.1, सॉरी 0.1 ऑफ अकरिंग ए, 0.2, ठीक है, 0.3, ओके, कॉमा 0.2 कितना हो गया? 1, 2, 3, 3, 6, 7, 8, ओके, एंड 0.1, 9, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो इसे भी अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है? तो 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8, सॉरी 3, 3, 6, 2, 8, 8 एंड 2, 10, सो इसे मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है? सो दिस होल प्रोबेबिलिटी इज़ 1, ठीक है? होल प्रोबेबिलिटी इज़ 1। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एफ इज़ 0, तो जस्ट सी दिस। अब आप यहाँ पे देखोगे यू विल नॉट गेट कि एफ अकर हो रहा है। जस्ट सी दिस, एफ नहीं अकर हो रहा है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज अकरिंग एफ इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ
अकरिंग ई इज 3, नाउ जस्ट सी दिस, ई अकर हो रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी सी इज अकरिंग सी इज 3, तो ई सी डी ये सब अकर हो रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बहुत ही रेयरली अकर हो रहे हैं, पर इफ यू कुड सी डी ई ज़्यादा मेजरली अकर हो रहे हैं क्योंकि इनका प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेट द प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। ओके, आई होप इट वुड मेकिंग सेंस कि हाउ दिस थिंग्स इज वर्किंग, हाउ दिस प्रोबेबिलिटी थिंग्स इज वर्किंग इन चॉइस। ओके, now let's come to the another function which is the shuffle function which I want to discuss, and this is one of the important function. So we are having the shuffle function in NP, where it is mm, shuffle, this is the shuffle function. Okay, सो व्हाट इज दिस सफल फंक्शन, यू आर हैविंग वन एरे, ठीक है, आपके पास एक एरे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से आई एम हैविंग द एरे एंड np डॉट अरेंज, अरेंज इज द अरेंज, np डॉट अरेंज एंड यू कैन असाइन कि यहाँ से आप बोल सकते हो कि मेरे को 20,000 से लेके 50,000 तक वैल्यू चाहिए। ओके, सो इट विल जस्ट गिव यू वन एरे ऑफ सैलरी। ओके, सो इट विल जस्ट, द थिंग इज इट विल टू मेनी नंबर्स, एक्चुअली इट विल बी टू मेनी नंबर्स, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ, एक्चुअली मैं कर सकता हूँ, इट विल गिव मी द ह्यूज डेटा सैलरी, सो इफ आई जस्ट शो यू, वो आपको कुछ इस तरह से डेटा देगा और मैं चाहता हूँ कि 20,000 द स्टेप शुड बी ऑफ 1,000, 1,000 का स्टेप होना चाहिए, तो 20,000, 21,000, 22,000 समथिंग लाइक दैट, 49,000 तक वो आपको क्या दे रहा है, डेटा दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं 51,000 लिख देता हूँ, सो मेरे को यहाँ पे क्या इंक्लूड हो जाए, इट विल बी इंक्लूडेड 50,000 भी इंक्लूड हो जाना चाहिए। ओके, 50,000 भी इंक्लूड हो गया। ओके, सो दिस इज द डेटा विच आई एम हैविंग। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस डेटा को अगर मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ करूँ, या ट्रेनिंग के लिए यूज़ करूँ, तो मैंने बोला कि 80% डेटा यूज़ करना है। तो हो सकता है मेरे को टॉप से उसने 80% पिक कर लिए, रेस्ट मेरे रह गए 20%, वो मेरे टेस्टिंग के लिए चले गए। पर यहाँ पे इश्यू हो जाएगा ना, क्योंकि जो 20% है वो हायर वैल्यू है और बिलो दैट जो 80% है वो लोअर वैल्यू है इन कंपैरिजन ऑफ द टेस्टिंग डेटा, है ना? तो ये इश्यू हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डेटा को सफल करूँगा। जब मैं सफल करूँगा फिर उसमें से मैं कुछ भी पिक कर सकता हूँ। ठीक है? नाउ जस्ट सी दिस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस एरे को पास कर सकता हूँ np डॉट np डॉट सॉरी व्हाट इट इज़ रैंडम, np डॉट रैंडम डॉट सफल। ओके, अब मैं यहाँ पे इस सैलरी को पास कर सकता हूँ। नाउ इफ आई रन दिस, ओके, रन हो जाओ भाई। ओके, नाउ लेट मी शो यू द सैलरी। जो डेटा आपके पास सॉर्टेड था अब वो सफल हो गया है। ओके, जस्ट सी दिस, इट हैज़ बीन सफल, ठीक है? इट हैज़ बीन सफल। सो अब ये जो सफल फंक्शन है वो एक्चुअली करता क्या है, वो एक्चुअल एरे जो है आपका व्हिच इज़ द सैलरी एरे, सैलरी में आपने इस एरे को स्टोर कर रखा है, जो एक्चुअल एरे है उसे मॉडिफाई कर देता है। मतलब उसे सफल कर देता है, उसके सब डेटा को असफल कर देता है। ओके? ऐसे ही एक फंक्शन होता है व्हिच इज़ द परम्यूटेशन फंक्शन। ओके? एनपी डॉट रैंडम डॉट, एक बार मैं इसे फिर से रन करता हूँ, इसका मतलब ये है मेरे पास अब सैलरी में जो डेटा है वो एक्चुअली सॉर्टेड डेटा है। ठीक है? सफल एक बार मैं रन कर दूँगा तो वापस से फिर वही इश्यू हो जाएगा, मतलब जो डेटा है। तो अगर मैं परम्यूटेशन इज़ वन ऑफ द फंक्शन जिसका यूज़ करके मैं यहाँ पे अरे पास कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें सैलरी पास करता हूँ तो ये क्या करता है, ये रिटर्न में मेरे को एक सफल्ड अरे देता है, रिटर्न में सफल्ड अरे देगा, बट ओरिजिनल जो अरे है जैसे दिस सैलरी, वो मेरा सेम रहेगा। ठीक है? तो परम्यूटेशन एंड सफल में क्या डिफरेंस है? सो परम्यूटेशन जो एक्चुअल जो अरे होता है, उसे क्या करता है, एक्चुअल एरे को सफल कर देता है, और सॉरी परम्यूटेशन जो है अपने एक्चुअल एरे को सफल करता है पर उससे मॉडिफाई नहीं करता, सो इट विल जस्ट रिटर्न यू वन अनदर एरे। पर जो सफल फंक्शन है वो एक्चुअल एरे को ही मॉडिफाई कर देता है, मतलब उसके ही डेटा पॉइंट्स को उसकी जगह पे क्या कर देता है, सफल कर देता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। अगर आप परम्यूटेशन यू विल यूज कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका डेटा हो, डेटा जो ओरिजिनल डेटा हो वो मतलब मैनिपुलेट हो, वो सफल हो, वो चेंज हो, तो आप क्या कर सकते हो, परम्यूटेशन का यूज़ कर सकते हो। सफल का यूज़ आप तभी करना जब आप चाहते हो कि आप ओरिजिनल डेटा, यू आर विलिंग टू चेंज द ओरिजिनल डेटा, मतलब ओरिजिनल डेटा में जो डेटा पॉइंट्स की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, देन ओनली यू विल यूज़ द दैट दिस सफल फंक्शन। ओके, आई होप इट वुड बी मेकिंग सेंस टू यू हाउ दिस इज वर्किंग एंड व्हाट इट इज। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग, let's create one dummy data set, or now you will see ki how we can use this random module. So create dummy
डेटा सेट, ठीक है? सो टू क्रिएट द डमी डेटा सेट आई विल क्रिएट द डेटा सेट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो फॉर दैट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एन स्टूडेंट्स और मैं बोलूँगा कि मेरे पास लेट्स से 200 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ओके? 200 स्टूडेंट का स्टूडेंट्स क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैथ के मार्क्स कितने हैं, तो एनपी डॉट रैंडम रैंडम डॉट रैंडम रैंडम इंटीजर, ओके? सो लो विल बी कि मैं बात करता हूँ कि मेरे लो जो मार्क्स रहेंगे, वो लेट्स से 30 आ रहे होंगे और हाईएस्ट स्कोर मेरा क्या है 100 है, ठीक है? इस रेंज में मेरे को जनरेट करना है और मेरा जो साइज़ रहेगा दैट वुड बी एन स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे को मतलब टोटल रिकॉर्ड्स इतने चाहिए, ठीक है? और या सो या दैट्स अ थिंग देन आई वांट टू जनरेट द फिज़िक्स फिज़िक्स मार्क्स, ठीक है? तो फिज़िक्स मार्क्स के लिए आई कैन जस्ट गो फॉर द एनपी डॉट रैंडम इंटीजर, ओके? और इसके लिए भी मैं जनरेट कर सकता हूँ एंड इट विल बी समथिंग। एक काम करता हूँ, मैं जो मैथ वाले मार्क्स हैं, ठीक है? मैथ वाले मार्क्स को ले लेता हूँ और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आई विल टेल यू, ठीक है? सो आई विल जस्ट से कि -10 से 10 के बीच में इट विल बी द साइज़, ठीक है? और सॉरी ये रेंज रहेगा और साइज़ क्या रहेगा मेरा? एन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो मैथ के मार्क्स आए हैं ना, इट विल बी रिलेटेड विद द फिज़िक्स मार्क्स, ठीक है? तो मतलब किसी बंदे के जैसे मैथ में लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 50 आए हैं, तो फिज़िक्स में हो सकता है +10 आ जाएँ, है ना? +8 आ जाएँ, तो 58 आ जाएँ या फिर लेट्स से +5 आ जाएँ, 55 आ जाएँ, है ना? समथिंग लाइक दैट। तो मैं चाहता हूँ कि दिस शुड बी रिलेटेड, है ना? मैथ और फिज़िक्स के मार्क्स दे शुड बी रिलेटेड, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी के इंग्लिश के मार्क्स हैं, दे विल नॉट बी रिलेटेड विद द मैथ और फिज़िक्स मार्क्स, तो ये इंडिपेंडेंट है, तो एनपी डॉट आई विल जस्ट से कि रैंडम एनपी डॉट रैंडम डॉट व्हाट आई कैन से एनपी डॉट रैंडम का यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म का भी यूज़ कर सकता हूँ। यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मैं बोलता हूँ कि मेरा लोएस्ट मार्क्स कितने रहेंगे, मैं बोलूँगा कि लोएस्ट मार्क्स मार्क्स मेरे 30 रहेंगे। हाई जो मार्क्स रहेंगे आई वुड जस्ट से कि हाईएस्ट मार्क्स मेरे दिस इज़ गोइंग टू बी द हाईएस्ट मार्क्स, यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है? और या दिस इज़ व्हाट इट इट विल बी एंड number of size will be n students, or yeah, this is how we are going to do that. So this is the uniform data which I can create, or I can use the English marks. There is a function which is English marks np dot random dot clip is one of the function which I will use, और इसमें मैं I will just pass the English marks, ठीक है? और यहाँ पे 0 to 100 रेंज। सो अब ये क्या है? एक्चुअली क्लिप एक ऐसा फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एरे जनरेट किया, ठीक है? दिस इज़ फॉर एग्जांपल इंग्लिश मार्क्स वाला एक एरे जनरेट होगा। आपने ये जो एरे जनरेट किया है, इट माइट चांस कि यहाँ पे कुछ वैल्यू होंगे जो 100 से ऊपर जा रहे होंगे, कुछ वैल्यू लेट्स से 0 से बिलो जा रहे हैं, मतलब माइनस में जा रहे हैं। तो जो माइनस में जा रहे होंगे वो 0 हो जाएँगे और जो 100 से ऊपर जा रहे हैं वो 100 हो जाएँगे, मतलब दे विल कम अंडर द रेंज, ठीक है? सो आई कैन यूज़ दिस फंक्शन टू ऑल ऑफ देम। मैं इसके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लेट्स से 90 मार्क्स आ गए और उसमें प्लस 9 ऐड हो गया जाके, ओके? सॉरी मतलब किसी के 95 आए जा अब मार्क्स आए हैं जिसमें मैथ में 95 मार्क्स हैं और इसमें लेट्स से उसने प्लस 9 ऐड कर दिया, है ना? तो इट इज़ गोइंग टू बी बियॉन्ड 100, तो मैं क्या करूँगा, जो फिज़िक्स मार्क्स हैं, फिज़िक्स फिज़िक्स मार्क्स जो दे रखे हैं, मैं क्या करता हूँ, इसे np डॉट रैंडम डॉट क्लिप और यहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स को पास कर दूंगा एंड इट विल बी रेंज 0 to 100, और सेम आई विल डू फॉर द मैथ, ठीक है? तो ऑल द मैथ तो 30 से लेकर 100 के बीच में जनरेट कर रहा है, तो मेरे को इसकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सो या आई कैन डू दैट, और ये मेरा डेटा जनरेट हो गया है। आई कैन प्रिंट कि मेरा डेटा क्या है। सो जो मैथ के मार्क्स हैं, सो आई जस्ट प्रिंट, आई वॉन्ट टू प्रिंट द लेट्स से 20 वैल्यूज फ्रॉम हियर, ओके? और आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट द 20 value of the math marks, 20 value of physics marks, okay? 20 value of physics marks, and I want to print the 20 value of English marks. English marks, so I can refer it as a math, okay? I can refer it as a physics, physics, okay? Something like that I can do, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा, it is going to be my English marks, okay? So if I print this now, if I could show you, it is just showing you कि यहाँ पे clip has and numpy dot random, it is really, it is not random actually, it is just np dot clip, it is np dot clip and it is np dot clip,
ठीक है? इट इज़ नॉट अंडर द रैंडम मॉड्यूल, इट इज़ द नंपाई फंक्शन, ठीक है? तो आप मैथ के मार्क्स देख सकते हो और इंग्लिश के मार्क्स देख सकते हो, सो दे हैड जनरेटेड द इंग्लिश के मार्क्स, पर वो यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो इसमें केस में आ रहे हैं, पॉइंट्स में आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग कि हाउ इट इज़ वर्किंग। इंग्लिश के मार्क्स पॉइंट्स में आ गए, बट नो बिग डील। यू कैन चेंज इट टू रैंडम इंटीजर एज़ वेल, बट अगर आप देखोगे तो कोई भी मार्क्स बियॉन्ड 100 नहीं होगा, कोई भी मार्क्स बिलो 0 नहीं होगा, ठीक है? So this is how we can do the things, and this is how we can use the random module, ठीक है? और भी यूज़ केसेस हम आगे देख रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? जो भी अपन ने डिस्कस किया था, अपन ने आरएनडी फंक्शन डिस्कस किया था, ओके? अपन ने रैंडम इंट फंक्शन डिस्कस किया था, अपन ने यूनिफ़ॉर्म फंक्शन डिस्कस किया था, फिर प्रोबेबिलिटी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। चॉइस फंक्शन क्या है, चॉइस में प्रोबेबिलिटी है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? एंड सफल और परम्यूटेशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देन वी हैड जनरेटेड द रैंडम डमी डेटा सेट यूजिंग द रैंडम मॉड्यूल ऑफ द numpy, ठीक है? सो दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप जो भी आपको समझ में आया है, अगर कुछ नहीं समझ में आया यू कैन कमेंट इट डाउन, ठीक है? थोड़ा-सा वीडियो लंबा ज़रूर है, बट हाँ, इट वुड बी इन्फॉर्मेटिव टू यू, ठीक है? सो दैट वाज़ इट, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।